क्या होता है, चेन होती है, क्या होता है, चेन ऑफ इनहेरिटेंस, चेन ऑफ द सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, राइट। ए का चाइल्ड बी का चाइल्ड सी, ऐसा टाइप का होता है, समझ रहे बात को नहीं, लाइक दी, गॉट माय पॉइंट। Like that, this type of inheritance banega. For suppose, for example, I am developing one scenarios like I'm developing a class like animal. Inside animal सब member, कुछ member है, relationship अभी establish कर रहे हैं ना, animal, and I'm developing horse. Horse extends animal, means horse is an animal or not? Yes, horse is an animal. Okay. Now I'm again developing one more class like Kabuli horse or Kabuli horse. Extends what? Horse. Got my point? What is this? This Yes, is sir. what? Chain बन रही है नहीं बन रही है? Yes, sir. This is what? Multi-level inheritance. Got the point? So Yes. I'm going to develop this kind of scenario. Example आपको overall अब इसमें how many object I need to create in order to access functionality of animal, functionality of horse, functionality of Kabuli horse. In order to access functionality of Kabuli horse, functionality of horse, and functionality of animal, how many objects I need to create? At least. Sir, one object. For which of which class? Of which class? Kabuli horse. Animal. Kabuli horse. Kabuli horse, right? सबसे चाइल्ड जो हमेशा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता, ध्यान रखना। पेरेंट का Okay, sir. बनाओगे तो इनहेरिटेंस का एडवांटेज नहीं उठा पाओगे। Okay, sir. पेरेंट का बनाने वाला अगर आपने एनिमल का बना दिया तो बाय यूजिंग एनिमल क्लास ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट inherit the property of horse. You cannot get the property, you cannot call the members of Kabuli horse by using animal object. So you will not get the advantage of any inheritance if you create object of parent, right? Yes, sir. But here if you create the object of horse, then you can call all the member of horse class and you can call all the member of animal class, will not call the member of Kabuli horse class. Got my point? Yes. सो ऑलवेज यू नीड टू रिमेम्बर इनहेरिटेंस में सबसे चाइल्ड क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट बनता है, राइट। बट अलग अलग इनहेरिटेंस के साथ तो सोचना पड़ेगा। सपोज करो अभी मैं हायरार्किकल की बात कर रहा हूँ, HIERAR हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जो नेक्स्ट वाला है ना, मैं इसके केस में क्लास बना रहा हूँ लाइक ए इनहेरिट करती है बी को, राइट। ए जो इनहेरिट कर रही है वो बी को कर रही है, तो कुछ ऐसा एग्जांपल बनेगा इसका, एंड सी को कर रही है, राइट। समझ पा रहे हो बात को? जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल क्लास एनिमल, इनसाइड एनिमल क्लास देयर आर सब मेंबर, क्लास कैट एक्सटेंड्स what animal, class horse, tell me fast, extend what, extends Animal. Animal है। हाँ एनिमल, गुड। दिस इज व्हाट, ये जो इनहेरिटेंस है इसमें how many objects I need to create in order to use animal and horse and cat? How many objects I need to use? I need to create in order to access functionality of animal, cat and horse. Tell me fast. Two objects, sir.
हाँ दो सर, दो दो। object। तो हाँ, क्योंकि बी और सी यानी इस बी और सी के जो मेंबर हैं ये एक दूसरे के वैल्यूज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे मेंबर्स को। सी क्लास के ऑब्जेक्ट से यू कैन गेट द फंक्शनैलिटी ऑफ सी प्लस ए, राइट? And by using B object, you can get the functionality of B and सी। नहीं यार, C कहाँ से? B and A। इनहेरिटेंस ऐसा नहीं चलता भाई, ये देख रहे हो तुम, समझ ही नहीं पा रहे इसका मतलब, ये ऐसा इनहेरिटेंस नहीं चल रहा है। इसमें आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। चाइल्ड पेरेंट कौन है? एक रिलेशनशिप है A और B का, एक रिलेशनशिप है A एंड C का। गॉट माय पॉइंट? एक रिलेशनशिप ये हो गया, एक ये हो गया, ये और ये। यस सर। तो दो सेपरेट ऑब्जेक्ट बनेंगे, कैट का अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, हॉर्स का अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। यू गॉट माय पॉइंट? ओके सर। बट दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग एनिमल को एक्सेस कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? यस सर। तो फिर में एक एक करके फंक्शनैलिटी डेवलप करते हैं। आई एम गोइंग टू डेवलप दिस सिनेरियो। क्लास का नाम रख लेते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है ना? Now I'm going to develop some of the functionality inside animal. Okay, I'm developing one in final int number of leg. Each animal contains how many legs? Fast. Each and every animal contains or Four have how legs। many legs? 4. Okay. यस सर। Now I'm going to develop one more thing like some M1 method. ठीक है ना? M1 method. Some dot out dot println. Inside M1 of animal. Got the point? यस सर। Inside horse. I'm developing some horse specific fields. हॉर्स स्पेसिफिक फील्ड क्या हो सकती है? चलो यार अभी ये मुझे कोई बात नहीं। आई एम डेवलपिंग ए एंड बी एंड सी, राइट? तो सपोज करो मैं अभी ऐसे बस ऐसे ही नॉर्मल प्रोग्राम बना रहा हूँ, मुझे फंक्शनैलिटी इसकी याद नहीं आ रही है ना, क्या वेरिएबल ले सकते हैं हम लोग। बस हमको अभी इनहेरिटेंस समझना है कि इनहेरिटेंस का फ्लो कैसे होगा। M2 ओके, तो हमको कितने ऑब्जेक्ट एक्सेस करना पड़ेंगे इनसाइड M2 ऑफ व्हाट? हॉर्स, राइट? Another class I have developed, that is what? Kabuli horse. Suppose करो boolean b is equals to false, right? False by default ले ही लेगा ना। Okay, I'm going to develop one more method inside Kabuli horse, that is what? M3, and copy paste one SOP statement. M3 of animal Kabuli horse. प्रोग्राम समझ में आया भाई? आप समझो एक क्लास है हमारे पास, उस क्लास में कुछ फील्ड्स हैं, मतलब कुछ नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं, उस क्लास में कुछ मेथड है, राइट? चाइल्ड क्लास बनाई मैंने एनिमल की, उसमें कुछ वेरिएबल है यानी कि नॉन स्टैटिक मेंबर्स है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स है, नॉन स्टैटिक मेथड है, राइट?
अगेन एक और मैंने क्लास बनाई है हॉर्स के अंदर, मतलब हॉर्स को इनहेरिट करती है। Inside that class I have also created one more field and one more method. Got it? बोलो भाई। Yes sir. समझ Yes, में sir. आ रहा है नहीं? Yes sir, आ रहा है सर। Yes, sir. चलो tell me first how many object I need to create? 1. One object. Yes sir. Okay, of which class? Kabuli Animal. horse. Of which class I need to create an object Kabuli horse. in order to access all the member of all inheritance hierarchy class? Kabuli horse. Kabuli horse. Very simple. Okay. Yes sir. So you need to create an object. Kabuli horse, obj, or any variable name like new Kabuli horse. Is there any constructor inside the Kabuli horse class? Yes sir. How many parameterized constructor is that? No sir. Try to understand. Is there any constructor inside Kabuli horse class or not? No sir. But in case of a class doesn't have any constructor, for that case Java compiler will create the constructor, right? Yes sir. Right. So that constructor is how many parameterized? 0 parameterized. 0. That is why I am passing 0 param to JVM. JVM can easily find the 0 parameterized constructor in which class? Kabuli horse class. Right? Yes sir. And will set the default value of the all non-static member of or all non-static variable of Kabuli horse. ओके Yes sir. एक और चीज समझ लो अच्छे से जो मैंने कल बताना रह गया था। जब भी काबुली हॉर्स का ऑब्जेक्ट बनेगा तो काबुली हॉर्स के ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही चेक करेगा इज देयर एनी क्लास, इज देयर एनी सुपर क्लास ऑफ काबुली हॉर्स? यस, हॉर्स। देन इट विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ हॉर्स क्लास and after that it will check is there any parent class of horse? Yes, animal. So before creating horse object first create animal object. Got my point? समझे या नहीं भाई? So internally or 3 object will be created. Yes sir. मतलब आप तो एक बनाओगे इंटरनली 3 बनेंगे और आप एक ही एक रेफरेंस है आप वो हमारा कंपाइलर बना देगा। कंपाइलर नहीं बनाएगा भाई, ये रन टाइम पे बनते हैं तो जेवीएम बनाएगा। हाँ भाई सर। कंपाइलर तो कंपाइल करता है कोड को, चेक करता है Yes, आपका sir. जो सोर्स कोड है वो सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है ना? तो जेवीएम आपके ऑब्जेक्ट बना देगा। समझ में आया नहीं? अगेन फिर से सुनो, कल बताना भूल गया था ये चीज को। जस्ट वन you request to JVM to create the object of Kabuli horse by passing 0 parameter, right? Before creating the object of Kabuli horse by JVM first search was search. Is there any parent of Kabuli horse? Yes. What is the name of parent? Horse. So it will go to the horse class. And before creating the object of horse, it will check is there any parent of animal? Yes. Yes. Is there any parent of horse? Yes, animal. So before creating the object of animal, it will check, JVM will check is there any parent of animal? Tell me fast. Is there any parent of animal? No, listen. No sir. Yes, no नहीं, yes इसका आंसर है भाई। देखो हाँ जब yes sir. Yes sir. मैं आगे अभी हालांकि पढ़ाऊंगा अभी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। जिस क्लास का कोई पेरेंट नहीं होता है उस क्लास के पेरेंट का नाम क्या होता है? ये अपने आप लिख जाएगा इसके आगे, ऑब्जेक्ट। आप समझ रहे हैं नहीं? Yes sir. ऐसे समझे, मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, है ना? ऐसे मत समझो, मैं ऐसे पहले प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है ना? समझ में आया? तो ओवरऑल कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे प्रोग्राम में? सर 2।
तो नहीं 4 ऑब्जेक्ट बनेंगे भाई, हो रहे हो क्या? हाँ 4 अभी बना के डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ एक मिनट, है ना, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हें। चार ऑब्जेक्ट लेकिन एक ही एड्रेस से पॉइंट होंगे, ये ध्यान रखना। अभी डायग्राम बना रहा हूँ, माउस लगा रहा हूँ। क्या नहीं, okay, I'm developing one diagram so that you people can understand easily. Okay, समझो, देखो कितने कैसे कैसे ऑब्जेक्ट बनेंगे। पहले एक पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर लो। A class, if a class which does not have, which doesn't extend any other class, if a class which doesn't extend any other class, then compiler will add, or compiler will inherit one class in my class. Compiler will inherit one class in my class. That is what? That is java dot lang dot object. You got the point? ये समझ में आ गई है नहीं? ये ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करेगा कब? अगर मेरी कोई भी जावा की क्लास, if any of the java class, चाहे वो any of the class मींस प्रीडिफाइंड, यूजर डिफाइंड, कैसी भी क्लास हो, चाहे मैंने बनाई हो या जावा वालों की हो, प्रीडिफाइंड और यूजर डिफाइंड, if any of the java class, if any of the java class either predefined or either predefined or user defined which does not, जो कि किसी अदर क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही है, then compiler will inherit one class in my class. That is what? That is, tell me fast. That is what? Object class. Got point? Yes sir. तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको हर क्लास के केस में, ठीक है ना? Okay बहुत सारी चीजें इनहेरिटेंस में, बहुत सारी चीजें हैं अभी, ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक? अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कैसे पता चलेगा कि जो हम ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिट होती है, राइट? Yes sir. ओके, सो फर्स्ट टाइम मैं कंपाइलिंग, पहले इस प्रोग्राम को डेवलप कर देता हूँ कंप्लीटली, ठीक है ना? तो सिस्टम डॉट प्रिंटलन, ठीक? तो मैं बाय यूजिंग ओबीजे, सॉरी बाय यूजिंग, पहले अभी डायग्राम बना के और समझाता हूँ। बाय यूजिंग ओबीजे आप क्या क्या कर सकते हो? ओबीजे मींस व्हाट? रेफरेंस ऑफ काबुली हॉर्स। तो रेफरेंस ऑफ काबुली हॉर्स मींस ऑब्जेक्ट ऑफ काबुली हॉर्स, यू कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ काबुली हॉर्स, you can get the member of horse, and you can get the member of animal. Got my point? Yes sir. Okay,
So I'm calling the member of what? Kabuli horse. Suppose तो obj डॉट what b, ठीक है ना भाई? तो क्या रिजल्ट आएगा इसका? जल्दी बोलो भाई। obj डॉट m3, टेल मी फास्ट, क्या रिजल्ट आएगा इसका? हम्म, 20. क्या आएगा? obj डॉट b, जल्दी बोलो यार। Sir, inside 3 of Kabuli horse. अरे नहीं, obj डॉट b। अच्छा yes yes obj dot b, लेकिन हाँ yes sir obj क्या आएगा? obj dot b obj डॉट b की वैल्यू क्या आएगी भाई? जल्दी सर बताओ, इतना डिफॉल्ट टाइम पे कहाँ लगता है? सर डिफॉल्ट वैल्यू आएगी इसकी, क्योंकि देखो इसमें वैल्यू हमने असाइन कहाँ करी सर? b किस टाइप का वेरिएबल है? बुलियन टाइप का। अच्छा ट्रू फॉल्स वाला आएगा तो फिर ठीक है ना? तो दो यस b सर। हो गए, इसको हम b1 कर देते हैं, ठीक है? जल्दी क्या आएगा इसका? फॉल्स आएगा ना? यस सर। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बूलियन इज फॉल्स। ओके, कॉन्केटेनेशन स्पेस, फिर कॉन्केटेनेशन obj डॉट b, कितना आएगा जल्दी बोलते चलो, स्पेस obj डॉट 3, obj डॉट c, जल्दी बोलो कितना आएगी इसकी वैल्यू? ये चेक करेगा क्या ए बी सी नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं काबुली हॉर्स के? नहीं, यस नहीं है। तो इसके पेरेंट में जाएगा, क्या ये हॉर्स क्लास में वेरिएबल है? हाँ, हाँ है। यस सर हॉर्स है। क्लास में, तो हॉर्स क्लास में वैल्यू कितनी है इनकी? जल्दी बोलो भाई, क्या वैल्यू हॉर्स क्लास में एबीसी की? टेन 10, 20 20, 30. तुम लोग इतना इतना स्लो चल रहे हो। ओके, 10 20 30, 10 20 30, then I'm calling obj dot m2। ओके, m2 कॉल हो जाएगा, राइट? यस सर। फिर मैं इस प्रोग्राम में, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, काफी सारी चीजें समझाने वाली हैं, ठीक है ना? देन आई एम कॉलिंग दिस वेरिएबल बाय यूजिंग विच ऑब्जेक्ट? टेल मी फास्ट, बाय यूजिंग विच ऑब्जेक्ट? काबुली हॉर्स ऑब्जेक्ट, राइट? ओबीजे किसका ऑब्जेक्ट है? ओबीजे रेफरेंस वेरिएबल लिया, किसका ऑब्जेक्ट है ये? काबुली डॉट, सबसे जो लास्ट में चाइल्ड क्लास बनाएगी उसका ऑब्जेक्ट है, राइट? यस सर। हम काबुली हॉर्स ऑब्जेक्ट से आई एम कॉलिंग विच क्लास मेंबर? काबुली हॉर्स, हॉर्स एन एनिमल, व्हाट माय पॉइंट? यस So overall, how many objects to access the functionality of animal, horse, and Kabuli horse? How many objects I'm creating in order to access functionality of animal, horse, and Kabuli horse? How many objects I have created? 1, Tell me fast. 1. Only one, right? Only one object. By using only one object, I'm getting the property of 3 classes. You got my point? यस देखो, सर। एक क्लास की प्रॉपर्टी ये थी, एक क्लास की प्रॉपर्टी ये है। प्रॉपर्टी मींस उस क्लास के मेंबर, मेंबर मतलब वेरिएबल मेथड ब्लॉक कंस्ट्रक्टर, राइट? समझ में आ गया इनहेरिटेंस कैसे चल रहा है मल्टी लेवल? यस सर। एनी इश्यूज? No, sir. ओके, सो ये नंबर ऑफ लैग इज व्हाट 4, m1 मेथड कॉल कर देगा। ओके, तो क्या आंसर आएगा? पहले फॉल्स आएगा, देन m3 कॉल होगा, फिर 10 20 30, फिर m2 कॉल होगा, एंड देन 4 एंड m1 कॉल हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। देखो भाई, आंसर देखने से मतलब नहीं, ओवरऑल आपको
फ्लो समझना है चीजों को। फिर मैं अभी डायग्राम बना के और चीजें डिटेल में समझाऊंगा, राइट। फॉल्स फॉल्स आया, देन M3 कॉल हुआ काबुली हॉर्स का, देन 10 20 30 आया, फिर M2 कॉल हुआ हॉर्स क्लास का, एंड देन 4 आया, एंड देन M1 कॉल हुआ एनिमल क्लास का। सो हमने किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था? काबुली हॉर्स का। और मेंबर कितनी क्लासों के गेट हो रहे हैं? काबुली हॉर्स के मेंबर को कॉल कर ले रहे हैं काबुली हॉर्स ऑब्जेक्ट से, काबुली हॉर्स यस ऑब्जेक्ट को हॉर्स के मेंबर एक्सेस कर ले रहे हैं, और काबुली हॉर्स के ही ऑब्जेक्ट से हम वी आर गेटिंग एनिमल के जितनी भी मेंबर है सर, उनको कॉल उसी कर। क्लास के सब आएंगे? हाँ हाँ, किस क्लास के? सॉरी सर, काबुली हॉर्स के। नहीं यार, ये काबुली हॉर्स, by using Kabuli horse object I can get property of Kabuli horse. I can get, by using Kabuli horse object I can get the functionality of horse class, and by using Kabuli horse object I can get the functionality of animal class. यस सर। नहीं समझे बात को बीवी? सर समझ गया सर। Any doubt to anyone? संकल्प? Okay. ये सर आगे सुने। आगे समझ में? नाउ हम फर्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है, if any of the Java class either predefined or user defined which does not extend any other class, कोई भी जावा की क्लास या तो हमारी क्लास या प्रीडिफाइंड क्लास अगर जावा की क्लास किसी जावा क्लास को एक्सटेंड नहीं करती है, फॉर दैट केस जावा कंपाइलर विल इनहेरिट वन क्लास इनटू माय क्लास। इनटू माय क्लास मींस मतलब वो क्लास जिसमें किसी को एक्सटेंड नहीं किया गया है। यस सर। तो उसमें वो क्लास कौन सी एक्सटेंड हो जाएगी? java.lang.object। java.lang क्या है? पैकेज का नाम है। ऑब्जेक्ट इज व्हाट? क्लास नेम। ऑब्जेक्ट इज व्हाट? ओ कैपिटल। ऑब्जेक्ट इज व्हाट? क्लास नेम। तो जावा की ऐसी कौन सी क्लास है इसमें? टेल मी फास्ट। इस प्रोग्राम में ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें हमने इनहेरिटेंस नहीं लगाया है? जिसमें हमने किसी क्लास को इनहेरिट नहीं किया? टेल मी फास्ट। एनिमल। एनिमल। और कोई क्लास है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल। दो क्लास ऐसी हैं यहाँ इस प्रोग्राम में, दो क्लासेस ऐसी हैं जहां पर इनहेरिटेंस यानी किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कराया गया है। सो इफ यू डोंट इनहेरिट एनी ऑफ द क्लास इन योर क्लास, फॉर दैट केस जावा कंपाइलर विल इनहेरिट वन क्लास, दैट इज व्हाट? फास्ट ऑब्जेक्ट class. So need to observe one thing, CMD। ठीक है, मैं सपोज वो क्लास एनिमल थी, राइट? तो एनिमल का बाइट क्लोज लाने की कोशिश करता हूँ। जावा पी एनिमल, ओके। जावा पी व्हाट? एनिमल। तो यहाँ असल में लिख के नहीं आ रहा एक्सटेंड, ओके, नो इशू, बट नो इशू। एनिमल के बाद एक क्या थी? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, है ना? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सॉरी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके। वैसे यहाँ लिख के आता था 1.6 तक। हाँ मुझे याद आया, मेरा 8 वर्जन है, 1.6 तक ना यहाँ लिख के दिखता था। ओके, कोई इशू नहीं। फिर भी हमें पता करना है तो कैसे पता करोगे? टेल मी फास्ट। आप क्या करो? यू हैव टू गो ऑन CMD एंड चेक दिस नॉन स्टैटिक मेंबर ऑफ विच क्लास? ऑब्जेक्ट क्लास, राइट? You got my point? Yes sir. And call is what? toString, ठीक है ना? toString को कॉल कर लो, और इस toString कैसा है? नॉन स्टैटिक है। और आप ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट मत बनाओ। अगर ये कॉल हो गया अपने आप, इसका मतलब क्या हुआ? ये नॉन स्टैटिक है तो बगैर ऑब्जेक्ट बनाए कॉल नहीं होगा, तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से कॉल होगा, राइट? यस सर। नहीं समझे मेरी बात? अगर आपको किसी क्लास का नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करना है और आपसे कहें ऑब्जेक्ट मत बनाओ, तो कॉल कर पाओगे? नहीं। लेकिन अगर आपने उस क्लास को यानी इस क्लास को कहीं इनहेरिट कर रखा है, तो आप काम बन जाएगा या नहीं बनेगा? यस सर। यहाँ से समझो, एनिमल यस क्लास। सर, बन जाएगा। So I'm calling, try to observe, I'm calling system.out.println। मैं यहाँ पे भी कॉल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? मैंने लिखा, डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है ना? क्या? obj.toString, obj.toString। सबसे पहले देखो obj किस क्लास का ऑब्जेक्ट? काबुली हॉर्स का।
क्या काबुली हॉर्स क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग है? टेल मी फास्ट। नो नो सर। सर। क्या काबुली हॉर्स की पेरेंट क्लास का नाम हॉर्स, क्या हॉर्स क्लास में टू स्ट्रिंग है? नो सर। नहीं। क्या उससे ऊपर वाली में टू स्ट्रिंग है? नो। क्या इससे ऊपर जो है, इससे ऊपर कौन क्लास है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट क्लास में टू स्ट्रिंग है? यस सर। क्या रिटर्न Yes, sir. करेगा टू स्ट्रिंग? टेल मी फास्ट। क्लास का नेम @ some hash code. What is the name of class? Tell me fast. Kabuli horse. Got my point or not? @ Yes, sir. some hash code. Got my point or not? Yes sir. Yes, sir. So internally, how many object is creating? Okay. Suppose let's assume if this class have two string method, public string, two string, it returning, suppose it return what? Return what? Multi-level inheritance. I'm writing this message. Okay. Multi-level INH. So for that case, if you call obj toString, then it first find toString into which class? First check toString available in Kabuli horse. No, Kabuli horse class के अंदर toString नहीं है. Then इसके parent में जाएगा. Horse class में toString है? नहीं है. उसके parent में जाएगा. उसके parent में चेक करेगा animal में toString है? हाँ है. तो इसके पेरेंट का टू स्ट्रिंग कॉल नहीं होगा, क्योंकि जो सर्चिंग हायरार्की है ना, सर्चिंग हायरार्की वो बॉटम टू टॉप चलती है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाती है. राइट? Yes, sir. समझ में आया नहीं? Yes, sir. तो इस क्लास में मिल जाएगा, तो पेरेंट क्लास का कॉल करेगा ऑब्जेक्ट क्लास का. No. ठीक. अगर आपको सपोज वो हैश कोड प्रिंट कराना, सपोज मैंने कॉन्केटिनेशन कर दिया और लिख दिया हैश कोड, तो ये हैश कोड क्या है? एक मेथड है. हैश कोड क्या है? ये एक मेथड है. किसका मेथड है? ऑब्जेक्ट क्लास का. ट्राई टू ऑब्जर्व. और हैश कोड नॉन स्टैटिक मेथड है. किस क्लास का? ऑब्जेक्ट क्लास का. और मैं डायरेक्टली कॉल कर ले रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? किसी क्लास का नॉन स्टैटिक मेथड डायरेक्टली कॉल होता है? नहीं. लेकिन किस केस में डायरेक्टली कॉल हो जाएगा? इनहेरिटेंस के केस में. तो अगर इफ एनिमल क्लास इज एक्सटेंडिंग ऑब्जेक्ट क्लास और नॉट, टेल मी Yes फास्ट. sir. अगर एनिमल क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट नहीं कर रही होती, तो क्या आप मेथड कॉल कर सकते थे ये वाला? No, sir. No sir. नहीं कर पाते भाई. ठीक है ना? सो Yes, दैट sir. मींस व्हाट? एनिमल क्लास इज एक्सटेंडिंग ऑब्जेक्ट क्लास. नॉट ओनली एनिमल, जावा की हर क्लास, जावा की हर एक क्लास बाय डिफॉल्ट किस क्लास को इनहेरिट करती है? ऑब्जेक्ट. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली का मतलब हुआ इस तरीके से, इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ? इस तरीके से. कैसे? क्या अगर मैं यहाँ पर हैश कोड लिख दूं तो कॉल हो पाएगा या नहीं? टेल मी फास्ट. नहीं सर, टेल मी फास्ट. नहीं हो पाएगा क्यों नहीं हो पाएगा? सर, हो क्योंकि वो जाएगा। ऑब्जेक्ट को सपोर्ट अरे नहीं भाई, करती यही है. तो इनहेरिटेंस है, यही तो समझने की चीज है. ये देखो, चेक करेगा कि हैश कोड मेथड इस हॉर्स क्लास में है? नहीं है. तो क्या इसके पेरेंट में है? इसके पेरेंट में भी हैश कोड नहीं है. तो हैश कोड मेथड यहाँ कहीं कॉल किया गया है? तो लिखा बॉडी बनाई गई है? नहीं. तो इसके पेरेंट में जाएगा, यानी एनिमल का पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में हैश कोड है? हाँ है. ये देखो. यू गॉट माय पॉइंट? यस सर. नहीं समझ में आया अभी भी? हाँ तो सर. डायरेक्टली इनडायरेक्टली जावा की हर क्लास जो है ये इनडायरेक्टली एक्सेस कर रही है. ध्यान से समझो, ये इनडायरेक्टली कैसे एक्सेस कर रही है? क्योंकि एक टाइम पे एक ही क्लास एक्सटेंड हो सकती है. तो हमने एनिमल को एक्सटेंड कर दिया. एनिमल किसको एक्सटेंड कर रही है? ऑब्जेक्ट को. तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हॉर्स तक पहुंची या नहीं पहुंची? यस सर. क्या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी काबुली हॉर्स तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी सर. बिल्कुल पहुंचेगी. यही तो इनहेरिटेंस है. क्या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस तक पहुंचेगी या नहीं? Yes sir. पहुंचेगी. बट कब पहुंचेगी? जब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का ऑब्जेक्ट बनेगा. राइट? यस ये सर. भी तो एक क्लास ही तो है. इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो तुमको ये मेथड कॉल कर सकते हो. राइट? समझ में आया नहीं? यस सर. Yes sir. अब मैं डायग्राम बना के और समझा दूंगा अच्छे से, तो क्लियर हो जाएगा. ओके, दैट्स गुड. सो मैं बस हैश कोड सिर्फ इसलिए समझाया आपको कि ये हैश कोड जो है पेरेंट क्लास का कॉल हो रहा है. ओके,
तो डोंट गेट कंफ्यूज, जैसे हैश कोड की वैल्यू लग के आ जाएगी बस। और अब तो स्ट्रिंग में क्या प्रिंट करेगा यहाँ पर, टेल मी फास्ट। अब जैसे क्लास का नाम @सम हैश कोड ना प्रिंट करते हो क्या प्रिंट करेगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सम हैश कोड। ओके, Yes. Yes, sir. गॉट माय पॉइंट। Yes, sir. देखो वो क्या प्रिंट कर रहा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सम हैश कोड, ठीक है ना। Yes, sir. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सॉरी यहाँ हमने हैश कोड इनसाइड वहाँ यूज किया था M2 मेथड के अंदर। सो हैश कोड इज सिमिलर और डिफरेंट, Similar, sir. सिमिलर। ओके, समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्ट वाली कहानी। अब देखो ये समझो कि 4 ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, पहले थियोरेटिकली समझ लो, ठीक है ना। इफ आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ, if I instruct to create object of child class, object of child class, then JVM first create object of top level parent class, then child। समझ में आया भाई ये बात, नहीं समझ में आई? Yes, sir. सबसे पहले टॉप लेवल पेरेंट होगा, फिर चाइल्ड, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। नाउ यू हैव टू फोकस। Try to observe. If you instruct, if I'm writing like this, type, मैंने लिखा न्यू और काबुली हॉर्स, राइट। Yes, sir. क्या होगा सबसे पहले, मैं ये भी चला के बताऊंगा कि एनिमल का ऑब्जेक्ट पहले बना है, राइट। अभी ये भी दिखा दूंगा, हालांकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है तुम लोग के लिए, अभी कंस्ट्रक्टर के साथ पढ़ाऊंगा, इनहेरिटेंस को क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी मैं छोटा सा प्रोग्राम बना दूंगा तो ये जस्टिफाई हो जाएगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट हॉर्स, सबसे पहला ऑब्जेक्ट किसका बना मेमोरी में, ऑब्जेक्ट क्लास का, देन एनिमल, देन हॉर्स, देन काबुली हॉर्स, राइट। Yes, समझो sir. अच्छे से। यहाँ पर जब आप ये लाइन लिखोगे तो सबसे पहले जेवीएम क्या करेगा, चेक करेगा हॉर्स क्लास की, सॉरी काबुली हॉर्स का कोई पेरेंट है, हाँ है। उस पेरेंट का नाम क्या है, हॉर्स। क्या हॉर्स का कोई पेरेंट है, हाँ है, बिल्कुल एनिमल। क्या एनिमल का कोई पेरेंट है, टेल मी फास्ट। No, sir. हाँ है एनिमल का पेरेंट, No, sir. Object. Animal code parent है. एनिमल का पेरेंट ऑब्जेक्ट है भाई। ये तो पढ़ा रहा हूँ बड़ी देर से, तुम समझ ही नहीं रहे हो यार बात को। ऑब्जेक्ट क्लास, Project. ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना, राइट। So ऑब्जेक्ट क्लास से object नीचे ये कौन सी क्लास है, एनिमल, देन एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स यार, इजी। एनिमल क्लास ऑब्जेक्ट, एंड व्हाट, हॉर्स क्लास ऑब्जेक्ट। संकल्प, संस्कृति, ऑल गुड और Yes. नॉट, Yes, sir. ओके। एंड आफ्टर दैट, अब ये पता कैसे चलेगा, अगला क्वेश्चन ये है, अगर आपका नहीं तो मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना, ये पता कैसे चलेगा, हम इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे, राइट। Yes, sir. तो अंडरस्टैंड, वेरी वेरी क्लियर, इजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं। नाउ काबुली हॉर्स, काबुली हॉर्स ऑब्जेक्ट, हॉर्स क्लास ऑब्जेक्ट, एंड सपोज करो यहाँ लिखा था obj इक्वल टू, राइट,
Yes, sir. So obj is pointing to which object? This. And this is connected to this. And this is connected to this. Okay? समझ पा रहे हो नहीं? Yes, sir. नहीं समझे बात को? अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा ये भाई तो मैं अब बार बार तो लिखना नहीं है कि ये सब नॉन स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, समझ रहे हैं बात को कैसे क्या होता था सिखा चुका हूँ, ठीक है ना? Yes, sir. ओके, एक दिस भी बनेगा, राइट? दिस इज व्हाट, दिस इज पॉइंटिंग टू दिस ऑब्जेक्ट एज वेल, और इस ऑब्जेक्ट का अपना एक एड्रेस होगा, ठीक है ना? जैसे हैश कोड करके बुलाते हैं हम लोग, सपोज वो एड्रेस 1 2 3 ABC है, राइट? Yes, sir. So this is the picture of, तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट, सेकंड ऑब्जेक्ट, मेमोरी में सेकंड नंबर पे बना, सेकंड OBJ, दिस इज व्हाट, थर्ड ऑब्जेक्ट। यू गॉट माय पॉइंट संकल्प? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत समझने Yes, में? sir. थर्ड ऑब्जेक्ट, No, sir. अब ये भी समझ में आएगा थर्ड नंबर पे ये कैसे बना, क्लियर इजीली समझ में आ जाएगा, है ना? चौथे नंबर पे कौन सा ऑब्जेक्ट बना? फोर्थ ऑब्जेक्ट। बट एड्रेस एक ही रहेगा, है ना? सिंपल, कितने एड्रेस रहेंगे? एक एड्रेस से चारों ऑब्जेक्ट पे रिवर्स करेंगे हम लोग बाय यूजिंग दिस एड्रेस। दिस एड्रेस इज असाइन्ड इनटू OBJ। बाय यूजिंग OBJ यू कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ काबुली हॉर्स, हॉर्स एनिमल एंड ऑब्जेक्ट। देख पा रहे हो नहीं? Yes, sir. Any doubt to understand this kind of scenario? No, sir. Next question is what, how you have to prove that object class object created first, animal class Sir. object created second, horse class object created at third number, and then after Kabuli horse. Okay, so जब ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या काम होता है? टेल मी फास्ट, वेरी फर्स्ट एक्टिविटी आफ्टर क्रिएशन ऑब्जेक्ट व्हाट? कंस्ट्रक्टर चलता है सर। कंस्ट्रक्टर चलता है, वेरी गुड। सो आई तो एम अगर सर राइटिंग कंस्ट्रक्टर इन ईच ऑफ द क्लास and print the cases. Okay, Yes, sir. so I am taking a print screenshot and sending to you. डायग्राम में any issue? No, sir. समझने में इसको कोई इशू? डायग्राम समझने में, फ्लो समझने में? नो सर। Okay, I'm taking print shot, sending to you. Okay, in this group. Okay, so in order to understand the same scenario, I am creating one constructor. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर तो एंड ऑब्जेक्ट क्लास में भी है, ध्यान से समझना। कंस्ट्रक्टर इज आल्सो अवेलेबल इन ऑब्जेक्ट क्लास, बट ऑब्जेक्ट इज माय क्लास और प्रीडिफाइंड क्लास? टेल मी फास्ट। Yes, sir. ऑब्जेक्ट इज माय क्लास और प्रीडिफाइंड क्लास? Sir, my class. यार हमने कहाँ बनाई बताओ? इस प्रोग्राम में कहीं ऑब्जेक्ट क्लास बनी है मेरी? हाँ भाई, प्रीडिफाइंड Yes, क्लास sir. है सर। मेरी क्लास है, प्रीडिफाइंड क्लास है, Sir, predefined में आएगी फिर। तो हम उसमें एडिट नहीं कर सकते या नहीं कर सकते उसकी कोड में? नहीं सर कर सकते। नहीं कर सकते, तो उसका कंस्ट्रक्टर जो है उस क्लास में कंस्ट्रक्टर है जीरो पैरामीटराइज, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। Yes, sir. बट उसके कंस्ट्रक्टर में एम्प्टी बॉडी कुछ लिखा नहीं है, जावा पी जावा डॉट हैंग डॉट ऑब्जेक्ट, है ना? तो वो खाली बॉडी का है, एम्प्टी बॉडी है, वहाँ जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। यहाँ दिख नहीं रहा जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके नो इशू। अगर आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हो, है ना? जीरो एम्प्टी बॉडी, कुछ प्रिंटिंग नहीं हो रही है उसके अंदर। नाउ हम जावा डॉट lang dot object source code. Okay, object source code, you can check it. This is what object class source code. Now you can check the constructor. ये जावा का सोर्स कोड ही है ना, ऑब्जेक्ट क्लास।
जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इसका यार। लोन मेथड लिखे हुए हैं इसमें, समझ गए सर। ठीक है ना। यस यहाँ सर, से समझ चलने गया। मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो नहीं अगर जीरो पैरामीटराइज नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, एरर आ जाता है। यस सर। मैं वहां पे भी पहुंचूंगा, है ना। ओके, सो एनिमल इज व्हाट दिस हॉर्स। तो सीक्वेंस क्या होगा इनका एग्जीक्यूशन का, जल्दी बताओ। इनसाइड हॉर्स कंस्ट्रक्टर, है ना। एंड देन नेक्स्ट व्हाट, काबुली हॉर्स, काबुली हॉर्स। ओके, तो जल्दी से बताओ ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट किस ऑर्डर में होंगे, टेल मी सर फास्ट। पहले एनिमल का होगा, वेरी गुड, फिर हॉर्स का, फिर काबुली हॉर्स का। वेरी गुड। एनिमल एंड देन व्हाट, एनिमल के बाद क्या आएगा, एनिमल के बाद एनिमल Horse. कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना, एंड हॉर्स कंस्ट्रक्टर, एंड देन काबुली हॉर्स, ठीक है ना। ओके, दैट्स Yes, यू हैव टेकिंग दिस प्रोग्राम। आगे आउटपुट सेम है, बाकी कुछ मत देखना, ठीक है। यू हैव टू ऑब्जर्व एनिमल एंड हॉर्स एंड काबुली हॉर्स। दैट मींस व्हाट, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ एनिमल का, कब हुआ, सबसे पहले, राइट। yes sir. उसके बाद हॉर्स, उसके तो डायग्राम से प्रूफ हो गया जो मैंने अभी डायग्राम भेजा ग्रुप में, यस राइट। सर। एनी इश्यूज? No sir. ओके, चलो आज के लिए अभी इतना ही, काफी सारी चीजें हैं बताने वाली। ओवरऑल फ्लो समझ में आया प्रोग्राम का। यस सर। कल हम डिस्कस करेंगे ये वाला इनहेरिटेंस, ठीक है, हायरार्किकल। हायरार्किकल आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हायरार्किकल में एक ये सिंगल लेवल हो गया, एक ये सिंगल लेवल हो गया, ये और ये, तो मतलब कलेक्शन ऑफ सिंगल लेवल इज कॉल्ड इट एज हायरार्किकल। बट हायरार्किकल में थोड़ी एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी भी चाइल्ड क्लासेस बनेंगे सबका पेरेंट सेम होगा, देख पा रहे हो, यस सर। सबका पेरेंट सेम।